Hello, good morning everyone. I am Arvind Sani, spot in front of you all on RNSM Classes YouTube channel. In last video, we learn about chemical reactions type and first type combination reaction. And today we are learn about decomposition reaction. Okay. So today's our topic is decomposition reaction. Previous class in we learn about combination reaction. This combination reactions definition are कि when two or more than reactant react to each other and form a single new substance. Okay, so that's called combination reaction. These decomposition reaction are totally opposite of the combination reaction. जैसे in combination reaction we learn about A plus B is equal to AB, and here AB break down into A plus B. It means combination reaction in bond are formed, but here decomposition reaction in bonds are break between AB. Bond break. ओके, एंड बॉन्ड ब्रेक होकर के ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए प्लस बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ए बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस बी. ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल इफ ए स्टोन, और एक स्टोन को अपने को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए अपने को क्या करने पड़ेगी? उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी. एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब हम उस पर एनर्जी लगाएंगे तो एनर्जी लगाने पर उस पत्थर को आसानी से क्या करेंगे? अपन ब्रेक डाउन कर देंगे. ओके, तो सेम प्रोसेस यहां है कि यदि इफ एनी सब्सटेंस को यदि अपने को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी? उसे एनर्जी देनी पड़ेगी. अब वो एनर्जी अपने को अपन यहां किस फॉर्म में दे सकते हैं? यहां अपन एनर्जी हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अपन हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यहां अपन इसको एनर्जी दे सकते हैं, और एनर्जी गेन कर ये जो ए बी है इसके बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने पर ये ए प्लस बी में कन्वर्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक ए डेफिनेशन ऑफ decomposition reaction. According to this, a reaction in which a single compound, it means reactant, are break down into two or more than substance, it means products. Okay, substance are called decomposition reaction. Are called decomposition reaction. A reaction in which a single compound, it means here AB is a single compound and are break down into two or more than substance. तो A plus B यानी two or more than substance के अंदर ये प्रोडक्ट में क्या होगी? ब्रेक हो गई. ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. According to give a heat, according to give energy, these reaction are a three type. Okay, for देखो these reaction are also three type. First
energy give in a form of heat, then this type of reactions are called thermal decomposition reaction. Second, sunlight. ओके, तो फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, these are three types of decomposition reaction, and now we learn about these three types of decomposition reaction one by one. So let's first of all start first reaction, thermal decomposition reaction. Okay, first thermal decomposition reaction. ओके, तो मैंने आपको अभी बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी का यूज किस फॉर्म में किया जाता है, हीट की फॉर्म में. किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में. तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, दिस रिएक्शन इन एनर्जी used in the form of heat for decomposition of reactant. Okay, this reaction in energy used in the form of heat for decomposition of reactant. Okay, so let's now understand with some examples. Example first. In first example we take FeSO4. Take FeSO4. FeSO4 is a green crystal. Okay, FeSO4 क्या है, एक ग्रीन क्रिस्टल होता है और इसे क्या देंगे अपन, हीट. ठीक है, हीट देने पर जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, इट्स ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, FeSO4 ये क्या है, green crystal. Okay, and this chemical name is ferrous sulfate. Fe2O3. Fe2O3 chemical name ferric oxide. Okay, its physical properties are solid. Okay, and these are also solid. Ferric oxide, its color brown. Okay, it's convert into brown color. This ferrous sulfate's crystal's color green, and this green color are changed into brown color. Sulfur dioxide, it's are gas, and sulfur trioxide, it's are gas. Okay, now take next example. In next example, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट वही गिव हीट. ओके, एंड हीट देने पर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड
कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट और इट्स जनरल नेम limestone. Okay, or its formula of marble. Okay, calcium oxide, chemical name is calcium oxide and general name quicklime. Okay, and this carbon dioxide gas, solid and solid. Okay, next example third, lead nitrate, PbNO3 का whole twice. These are lead nitrate. Okay, and गिव हीट एंड हीट देने पर ये जो लेड नाइट्रेट है, इस लेड नाइट्रेट कैसा होता है, ये कलरलेस. ओके, एंड दिस कन्वर्ट इनटू लेड ऑक्साइड. ओके, लेड ऑक्साइड एंड साथ में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर रिलीज. ओके, पीबीओ यानी पीबी लेड नाइट्रेट, फिर लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस. हियर नाइट्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, दीज नाइट्रोजन गैस आर ब्राउन कलर्ड. ओके, ये किस कलर में गेन होती है, अपने को ब्राउन कलर में गेन होती है. और ये जो लेड ऑक्साइड है, ओके, ये जो लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड कैसा गेन होता है अपने को, येलो. कैसा होता है, येलो. ओके, तो ये क्या है, एक्टिविटी है जो अपनी बुक के अंदर दी हुई है. उस एक्टिविटी में क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, लेड नाइट्रेट, और फिर उसको क्या करते हैं, अपन बर्न करते हैं. तो जैसे उसको हीट देते हैं तो वह किसमें ब्रेक डाउन होती है, लेड ऑक्साइड. ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, एक ब्राउन कलर की गैस बाहर निकलती है, रिलीज होती है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट सेकेंड रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस. सो सेकेंड रिएक्शन, electrolysis. Okay, in first reaction, thermal decomposition, energy used in the form of heat, and these electrolysis reaction, these reaction in energy used in the form of electric current. Okay, these reaction in energy used in the form of electric current for decomposition of reactants. Okay, this reaction in energy used in the form of electric current for decomposition of reactants. Okay, now understand some examples. First example first, electrolysis of water. So let us learn about electrolysis of water. Okay, I will make a diagram. These are given in our NCERT books. Activity.
according to this activity we have understood to electrolysis process. Okay, so let's start this process. Okay, first of all take a plastic mug. It means ये क्या है, एक plastic mug. Take a plastic mug and these plastic mugs down 2 holes. Okay, इसके डाउन में 2 होल्स कर देते हैं, 2 छेद कर देते हैं, और उन दोनों छिद्रों के अंदर होल्स में क्या करते हैं कि रबर के जो स्टॉपर्स हैं उन स्टॉपर्स को इंसर्ट कर देते हैं. ओके, यहाँ रबर के स्टॉपर्स लगा करके इन रबर के स्टॉपर्स के अंदर क्या करते हैं, फिर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लेते हैं. उन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, इसके अंदर जो रबर स्टॉपर्स हैं इन रबर स्टॉपर्स में इंसर्ट कर देते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं. जब इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं, इसके बाद में इसके साथ में अपने को और क्या करना है इस एक्टिविटी में, कि ये जो अपन ने प्लास्टिक मग लिया है, इस प्लास्टिक मग में अपन क्या करते हैं, वाटर लेते हैं. क्या लेते हैं, वाटर, और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सम ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं. ओके, 2 और 3 ड्रॉप्स क्या कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं. अब क्या करते हैं कि जो 2 अपन ने इलेक्ट्रोड लिए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपन क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उन टेस्ट ट्यूब को इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगा देते हैं. आफ्टर देन अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. जैसे अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपन क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इन इलेक्ट्रोड्स के साथ में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, और ये जो बबल्स जो है फॉर्म होते हैं, ये बबल्स क्या करते हैं, इस जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर को इंसर्ट करते हैं. ओके, ये जो बबल्स जो फॉर्म होते हैं, क्या ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसके कारण सेम वॉल्यूम के अंदर जो गैस है वो कलेक्ट होती है इन टेस्ट ट्यूब के अंदर. ओके, यहां से क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहां से जो वाटर है, वाटर क्या होगा कि H2O है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा 2H2 प्लस O2. इसमें ब्रेक होगा 2H2 प्लस O2, यानी कि यहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ गैसेज आर रिलीज. ठीक है, एंड हियर these are anode and this cathode. Okay, anode side which gas, oxygen. Here तो oxygen gas and here hydrogen gas. Okay, तो यहां से अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों गैस जो यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्म होती है, क्या सेम वॉल्यूम के अंदर फॉर्म होती है. ठीक है, तो अपन देखो इस एक्टिविटी में अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि सेम वॉल्यूम के अंदर गैस जो है वो फॉर्म नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस रिएक्शन से देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या क्या डिफरेंस है. यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ क्या है, 2:1 है. यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है वो डबल फॉर्म होगी अब बजाय किसके, रेदर देन ऑक्सीजन. ओके, यानी हाइड्रोजन गैस इज अ फॉर्म डबल इन अमाउंट रेदर देन ऑक्सीजन. ओके, सो दैट यहां से तो यहां क्या हो रहा है, देखो इस एक्टिव टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो ये क्या है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है, और यहां देखो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. तो हाइड्रोजन गैस यहां क्या हो रही है, डबल फॉर्म हो रही है, किसके, रेदर देन ऑक्सीजन. ओके, सो दिस activity of electrolysis of water. Okay, and these here अपन electrolysis of सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट भी इसकी जगह यूज में ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें NaCl. ओके, ठीक है, NaCl एंड NaCl जो है उसको अपन सॉलिड फॉर्म में यहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म जो होती है NaCl की उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. ठीक है, बट जो NaCl का यदि अपन इसको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको यदि अपन लिक्विड फॉर्म में लें, ठीक है, NaCl को, तो ये क्या होगा, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस Cl2, यानी 2Na प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो यहां से देखो अब इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, वाटर की जगह
सोडियम क्लोराइड NaCl भी ले सकते हैं और ये एक्टिविटी अपन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब अपन किसी भी जैसे वाटर है या NaCl है तो इसके अंदर जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, अपने आयंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। ओके, एंड नाउ वी लर्न अबाउट थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, photochemical or photolysis decomposition reaction, photochemical decomposition reaction या photolysis. Okay, so here energy used in the form of light. Okay, देखो these reaction in energy used in the form of sunlight for decomposition of this energy in the use in the form of sunlight for decomposition of reactant. Okay, these are the definition of photochemical or photolysis reaction. And now we understand with some examples. Example first. Okay, first example AgCl. ठीक है, AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं तो ये Ag2+ और Cl2 के अंदर ब्रेक होता है। ओके, किसमें ब्रेक हो जाता है, Ag2+ और Cl2, यानी कि यहाँ क्या बन जाता है अपने को, Ag दो मॉलिक्यूल तो अपने को Ag के गेन हो जाते हैं और क्लोरीन गैस अपने को गेन होती है। ये जो Ag अपने को गेन होता है, जैसे अपन क्या करते हैं इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये जो AgCl है, ये AgCl कैसा होता है, ये होता है व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है इस ग्रेइश व्हाइट कलर के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्लोरीन जो गैस है, ये क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, जो कैसी होती है, इसका कलर होता है येलो ग्रीन। ये कैसी होती है, येलो ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, यहां AgCl के स्थान पर क्या यूज में ले सकते हैं, AgBr भी अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, AgBr को वही बात, वही सनलाइट और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, किसमें ब्रेक डाउन होगा, वही 2Ag+ Br2। ओके, 2Ag+ Br2। यहां भी ये जो AgBr है यानी सिल्वर जो ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड कैसा होता है, ये होता है पेल येलो कलर का। कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इसमें से ब्रोमीन कलर रिमूव होती है, जो कि कैसी होती है, कलर में ब्राउन कलर की होती है। ओके, ये जो AgBr है, ठीक है, सिल्वर जो ब्रोमाइड है, इसका यूज है, वो यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये थी तीनों डिकम्पोजिशन के जो 3 टाइप्स थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल और फोटोलाइसिस रिएक्शन। ओके, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, देखो अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट जो है वो हीट इवोल्व होती है, ठीक है, यानी कि रिलीज होती है हीट। इस कारण अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड हियर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन एनर्जी आर यूज्ड, कि एनर्जी जो है इस एनर्जी का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, यानी एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन के अंदर। इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन अपन क्या देख सकते हैं कि द रिएक्शन विच ऑक्यूर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, a reaction which occur by absorption of energy in the form of heat, light or electricity, heat, light or electricity. Okay, a reaction which occur by absorption of energy, heat, light or electricity are called endothermic reaction. Okay, and all decomposition reactions are endothermic reaction. All decomposition reactions are endothermic reaction. So these examples of endothermic reactions are examples of, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जांपल लिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर यह ब्रेक हुआ, सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ, बिकॉज endothermic reaction in heat are absorbed and decomposition reactions are also in heat is absorbed. So all decomposition reactions are exothermic reaction. Okay, thanks for watching this video.